Hello students, let us do the remaining questions of exercise 10.2. So today I am going to start with question number 10. In question number 10, what is given? Let me read question for you. In this question number 10, it's given that prove that angle between the two tangents. Angle between the two tangents. For two tangents, it means one circle is required to be drawn. So we have drawn one circle and these two tangents from an external point have been drawn. Okay. And the angle between these two tangents means this. This is the angle between these two tangents. PT and QT are the two tangents. And this angle PTQ is the angle between these two tangents. Drawn from an external point to the circle is supplementary. What is the meaning of supplementary? Means two angles are said to be supplementary if the sum is 180 degree. So this angle is supplementary to which? किस एंगल की supplementary है? वो बोला है supplementary to the angle which is obtained by, which is subtended by the line segment joining the points of contact at the center. यानी कि point of contact एक तो P है और एक Q है. ये जो tangent है इसका point of contact P है and QT का point of contact Q है. तो ये point of contact से when you join this point of contact to the center, when you join this point of contact to the center, then this angle is subtending at the center by these two line segments. So these two angles are required to be proved that these are supplementary. Means their sum is equal to 180 degree. This is to be proved. तो हम क्या लिखेंगे given में? In a circle with center O, PT and QT are two tangents drawn from an external point T. Now to prove angle PTQ plus angle POQ is equal to 180 degree. आपको इन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री प्रूव करना है. बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वेरी सिंपल. आप इसमें ये प्रूव करेंगे कैसे? प्रूफ देखो बेटा, आपको पता है OP is the radius, OQ is the radius, and we know by theorem 10.1 radius and tangent are perpendicular to each other at the point of contact. So these two angles are right angles, and you can see OPTQ. ये OPTQ की कितनी साइड्स हैं? 1, 2, 3, 4. इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है. So you can easily find, when you know the sum of these two angles, you can easily find the sum of these remaining two angles. So it's very easy. So let us write down OP and OQ are the radii of the circle, of the given circle, है ना? इस वजह से this implies OP is perpendicular to PT and या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए इसको कि 90 डिग्री है. Therefore angle OPT is equal to 90 degree and angle OQT is also 90 degree. Give the supporting reason. रीजन जरूर लिखना पड़ेगा. Because radius is perpendicular to the tangent of the circle at the point of contact. This is the reason. Okay. Now, since you know that OPTQ is a
quadrilateral. Therefore, this implies angle PTQ plus angle POQ plus angle OPT plus angle OQT is equal to 360 degree. Reason? Sum of angles of sum of interior angles of a quadrilateral. Now put the values. We know that OPT कितना है 90 and OQT is also OPT is this is 90, OQT is this is also 90 is equal to 360 degree. This is 90 plus 90 180 degree. Therefore, angle PTQ plus angle POQ is equal to 360 degree minus 180 degree. This implies angle PTQ plus angle POQ is equal to 180 degree. यही आपको प्रूफ करना था. Hence, it is proved. Hello students. Now question number 11 that was done in my previous previous lecture. 12th question I will do after this question number 13, and this question number 13 is the last question of this exercise 10.2, means the last question which is given in this chapter in NCERT book. So what is the question? In this question it is given that this is a circle which is circumscribed by this quadrilateral ABCD. यानी ABCD एक आपका क्वाड्रिलेटरल है जिसने इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है. अब आपको प्रूव करना है कि ये जो अपोजिट साइड है, जैसे कि AB एंड CD अपोजिट साइड है, तो ये जो AB साइड है ये जो सेंटर पर एंगल बना रही है, सबटेंड कर रही है, दिस इज एंगल AOB, और इधर से सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रही है अपोजिट साइड, जो इसकी अपोजिट साइड है, दैट इज दिस एंगल COD. तो ये प्रूव करना है कि ये दो एंगल्स जो हैं, ठीक है, ये इक्वल है, बोथ ऑफ दीज आर इक्वल. और इधर से आपका ये अपोजिट साइड BC के है, AD इज अपोजिट टू BC, ये इसके इक्वल है और ये एंगल आपका इसके इक्वल है. ये आपको प्रूव करना है. क्या है? प्रूव दैट, सॉरी ये equal नहीं, supplementary, sorry. Prove that opposite sides of the quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center. यानी इन दोनों का सम 180 डिग्री है और इन दोनों का सम 180 डिग्री है. ये प्रूव करना है, सप्लीमेंट्री प्रूव करना है. तो इसके लिए अब हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं. ये क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं हम? ये जो इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, ये Q है, ये R है और ये S है. आप इनको ज्वाइन कर दीजिए ऐसे, ठीक है, ये यहाँ ज्वाइन कर दीजिए ऐसे. मैं ये भी हटा देती हूँ बल्कि ऐसे, और इसको भी ऐसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है. थोड़ी फिगर आपको ऐसी लगेगी, इसमें सारा मैसी सा लगेगा क्योंकि बहुत सारे एंगल्स हैं, है ना. तो इधर मैं सब एंगल्स को डिफरेंशिएट, आई एम ट्राइंग टू डिफरेंशिएट ऑल द एंगल्स कि आपको अलग अलग दिखाई दे ये सारे एंगल्स. तो मैं इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे करके इनको यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, है ना. सारे एंगल्स आपको अलग अलग दिखाई दे. तो अब इसमें a quadrilateral ABCD circumscribing a circle with center O which touches the circle at point P, Q, R and S with the sides, क्योंकि P पॉइंट है AB, Q पॉइंट किस पर है? BC,
आर पॉइंट सी डी पर और ये एस पॉइंट किस पर है, डी ए respectively. What I have written? Look here again. A coordinate ABCD is circumscribing a circle with center O, which touches the circle at point P, Q, R, and S with the sides. Yeah, at the sides. With the sides. With the sides AB, BC, CD, and DA respectively. अब इसके बाद आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है ए, ये ओ है जी, बीच में सेंटर ओ है, एंगल ए ओ बी, इधर ये वाला एंगल ए ओ बी जो ए बी साइड ने सेंटर पर सबटेंड किया, और जो सी डी ने सेंटर पर सबटेंड किया है वो है ये वाला एंगल सी ओ डी। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल इधर वाली साइड कौन सा सबटेंड कर रही है सेंटर पर, एंगल ए ओ डी, और इधर वाली सी बी सी कौन सा कर रही है, बी ओ सी। ए ओ डी प्लस बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपको प्रूव करना है। अब हमने किया कंस्ट्रक्शन, इसमें क्या कंस्ट्रक्शन किया है जी हमने, इसमें हमने किया ज्वाइन PO, QO, RO एंड SO। ठीक है, अब हम प्रूफ पर आ जाते हैं। देखो बेटा, आप सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल ROD एंड DOSO, मैंने यहां पर एंगल्स की नेमिंग कर रही हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब जब हमें ये प्रूव करना है AOB का मतलब 4 + 5, और COD का मतलब एंगल 8 + 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव करना है आपने। ठीक है, तो पहले मैं यही करने की कोशिश करती हूँ, दूसरा भी अपने आप ऐसे ही देखो, ये 2 + 3 और ये 6 + 7, 2 + 3 6 + 7 आपको 180 डिग्री प्रूव करना है। ओके, अब आप ये देखिए, आई एम टेकिंग दिस ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल लिया मैंने, ये वाला, और इसके एडजेसेंट जो ट्रायंगल है वो वाला, ये दोनों ट्रायंगल्स लिए। ठीक, अब ध्यान से देखना, मैं पहले समझा देती हूँ। डी इज एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे तो बोथ ऑफ दीज आर इक्वल, DO इज कॉमन एंड SO इज इक्वल टू OR, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो ये दोनों ट्रायंगल SSS से कॉन्ग्रुएंट हो गए, एंड दिस यू हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इन योर क्वेश्चन, one question earlier of this exercise। तो वैसे ही है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसलिए एंगल 1 इज इक्वल टू 2। ऐसे ही ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए एंगल 3 इज इक्वल टू 4। ऐसे ही अगर हम देखें एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ से दो ट्रायंगल ये बना रहे हैं तो 5 इज इक्वल टू 6, सिमिलरली दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसमें कि इन ट्रायंगल कौन सा लिया जी हमने, DOR। देखो बेटा, ये देखने में क्वेश्चन इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फिगर से लग रहा है, लेकिन करने में इतना ज्यादा नहीं है। हाँ, लिखने के लिए तो होगा, लेकिन करने में इतना मुश्किल नहीं है। एंगल DOR एंड ट्रायंगल DOS, आप लिखेंगे DR इज इक्वल टू DS। रीजन देना पड़ेगा आपको, DR इज इक्वल टू DS क्यों है जी, बताइए, मैंने अभी रीजन किया था, सोचिए मन में। DR इज इक्वल टू DS क्यों है, क्योंकि टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। कौन सी थ्योरम थी जी ये
थी आपकी 10.2 थ्योरम। पूरा 10th चैप्टर सिर्फ दो ही थ्योरम्स के अराउंड इट इज मूविंग। व्हाट आर दीज टू थ्योरम्स? फर्स्ट इज 10.1 रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सेकंड है लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल इफ दीज टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। तो वो सेकंड वाली थ्योरम हमने यूज की। तो हमने ये लिखा कि ये साइड इस साइड के इक्वल है और OS इज इक्वल टू ये OR। OR इज इक्वल टू OS, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। सेम सर्कल के रेडियस इक्वल होते हैं। उसके बाद DS दोनों में कॉमन है, सॉरी DO दोनों में कॉमन है। DO इज इक्वल टू DO इज इक्वल टू DO कॉमन है। इस वजह से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल DOR कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOS। बताइए जी प्रॉपर्टी कौन सी, किस प्रॉपर्टी की वजह से? बाय SSS, क्योंकि तीनों साइड्स इसकी इक्वल हो गई। जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। ठीक है। सिमिलरली ट्राइंगल कौन सा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। बोलो कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट हो गए? ये ट्राइंगल SAOS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOP। दिस इंप्लाइज, अब आप ना जरा ये देखो, मैंने जब यहाँ पर करना है तो जिधर 2 है उसके अंदर मुझे 3 ऐड करना है। तो 2 जिस साइड में लिखा है मैं पहले ही 3 उधर लिखूंगी। ठीक है। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 है। ओके, सॉरी 3 इज इक्वल टू 4, सॉरी 3 इज इक्वल टू 4 है। ओके, दिस वाज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। सिमिलरली एंड हमने इसको इसके कॉन्ग्रुएंट किया, इसको इसके कॉन्ग्रुएंट कर दिया, अब ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। POB कॉन्ग्रुएंट किसके तरह? देखिए BOQ। POB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QOB। ट्राइंगल QOB जब ये इसके कॉन्ग्रुएंट है तो आप अब ये देखो कि आपको ये पूरा एंगल बनाने के लिए 4 में क्या ऐड करना है? 5। तो जिधर 4 है उसी के नीचे 5 लिखना, उसी के नीचे 5 लिखना। 5 इज इक्वल टू 6। ये थोड़ा सा अगर आप ध्यान देके चलेंगे ना कि हमें किस एंगल के नीचे क्या, कौन सा एंगल और क्यों चाहिए, फिर आपको करने में क्वेश्चन बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आ जाइए एंड ट्राइंगल। देखो आपने इसको कॉन्ग्रुएंट कर लिया, आपने इसको कॉन्ग्रुएंट कर लिया, आपने इसको कॉन्ग्रुएंट कर लिया। अब आप इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। ठीक है ना। कितने बने थे? एक पेयर, फिर दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर। ठीक है, 3 बन चुके हैं और ये चौथा पेयर कौन सा है? QOC एंड ROC। QOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ROC। देयरफॉर अब ये देखो कि ये है अब आपका 7, 8। अब 8 जो है वो किसके अंदर ऐड होना चाहिए? 8 होना चाहिए 1 के अंदर ऐड, क्योंकि तभी ये पूरा एंगल बनेगा जो आपको चाहिए। क्योंकि आप देखो ना 1 और 8 ऐड, मैंने इसीलिए आपको इधर लिख के दिखा दिया था। अब 1 देखो किस साइड है? इस साइड, आपका लेफ्ट साइड में। तो 8 भी इधर ही लिखना। 8 इज इक्वल टू 8 किसके इक्वल है? 7 के इक्वल है। 7, दिस इज नंबर 4। अब आप क्या कीजिए? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 चारों को ऐड कीजिए। ठीक है। जब आप चारों को ऐड करते हैं तो लेफ्ट साइड विल बी एडेड इन द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड विल बी एडेड इन द राइट साइड। अब ये देखिए एंगल 1, इधर से एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस, सॉरी पहले एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7। ठीक है जी। अब आप ये देखिए कि मुझे 4 और 5 का एडिशन चाहिए, तो 4, 5 इकट्ठा होना चाहिए, 1 और 8 इकट्ठा होना चाहिए। तो मैं रीअरेंज कर रही हूँ इनको, 1 और 8 को इकट्ठा लिख रहे हैं and I am writing these two together, angle 4 plus angle 5. Here in same manner
2 and 3 are to be written together. These have been already written together, and 6 and 7 they need to be together. So these have been already written together. No need to change it. Let them be written in the same position. This is number 5. Now we know that this is complete angle, means the measure is 360 degrees. So we know angle, but we know angle 1 plus 2 plus 3 plus देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कंप्लीट एंगल है सर। देखो बन रहा है पूरा सर्कल। तो इसका सम है आपके पास कितना? हाँ जी, कितना? 360 डिग्री। रीजन दीजिए, कंप्लीट एंगल है ये, कंप्लीट एंगल, इस वजह से। अब आप रीअरेंज कर लो। आप 1 को 8 के साथ लिख लो, 4 को 5 के साथ, 1 के साथ मैंने 8 को लिख लिया। 1 and 8 आई एम राइटिंग टुगेदर, रीअरेंजिंग, आई एम जस्ट रीअरेंजिंग। जो लिखा हुआ है उसी को रीअरेंज, एंड 4 और 5 को इकट्ठा लिख रहे हैं। सो 4 and 5, दिस इज 4, दिस इज 5, आई एम राइटिंग टुगेदर। ओके, अब इसके बाद जो बच गया हमारे पास 2 3 6 7 है ना, यही बचा, इनको भी लिख देते हैं। 2 3 6 plus 6 7, and you know by this 2 plus 3 plus 6 plus 7, 2 plus 3 plus 6 plus 7 becomes equal to 1 plus 8 plus 4 plus 5, ये इसी के इक्वल है। तो हम इसकी जगह दोबारा यही रिपीट कर देते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यू कैन सी दिस इज 2 टाइम्स, एंगल 1 प्लस 8 का पेयर भी 2 टाइम्स है, एंगल 4 प्लस 5 भी 2 टाइम्स है ना। तो हम मैं इसको इधर लिख रही हूँ, 2 टाइम्स हो गया सब कुछ, एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये 2 टाइम्स है। दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये 2 इधर जाके इससे डिवाइड हो जाए, 1 360 को डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि हमें प्रूव करना था कि एंगल 4 प्लस 5 प्लस एंगल 1 प्लस 8। तो 1 प्लस 8 का मतलब क्या है? 1 प्लस 8 का मतलब COD। सो एंगल COD एंड 4 प्लस 5 का मतलब क्या है? AOB। सो एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही प्रूव करना था। और आपको पता है 1 प्लस 8 4 प्लस 5 किसके इक्वल है? 1 प्लस 8 4 प्लस 5 इसके इक्वल है। तो आप यहाँ से ये भी 180 डिग्री कर सकते हैं। ओके, and the students, now only one question of exercise 10.2 of NCERT exercise, that is question number 12, that is left. Otherwise we have done all the questions, we have solved all the questions. So and question number 12 I will explain it in next lesson, but today I am giving you these 4 questions in the assignment. Now take the screenshot of these 4 questions and try these questions yourself.